Good morning to everyone. Today, once again, we will study the vocabulary section. From today onwards, we are going to study vocabulary in systematic order. Then, what is in systematic order? What we will study? In systematic order, we will study daily five one word substitution, one word substitution, and then five phrases and idioms, then synonyms and antonyms, then five synonyms, five antonyms, five one word substitution, five phrasal verb, and five idioms and phrases. In this way, daily we will study at least 50 words. We will memorize 50 words regularly. So, guys, continue on this channel and enhance your knowledge. Okay, let's start. First part, one word substitution. Then firstly, see here, first number, being unable to pay one's debt means अगर कोई जो है दिवालिया घोषित हो गया हो, माना पैसा देने में असमर्थ हो गया हो, तो उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट इज द वर्ड विच मीन्स being unable to pay one's debt. Means you can also use insolvent instead bankrupt. Means instead insolvent you can use bankrupt also. The spelling of bankrupt, 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 and insolvent both are the same meaning, which means being unable to pay one's debt. Then the next word, the study of the functions of the body means शरीर के functions के बारे में अध्ययन करना. क्या है? The study of the functions of the body, शरीर के functions के बारे में अध्ययन करना, उसको कहते हैं physiology, शरीर शास्त्र, physiology. In what is physiology? Physiology is the term in which we will study the functions of the body. Okay, then next number, third number, the science of foretelling events by stars means वह विज्ञान जिसके अंतर्गत तारों को देख करके जो है भविष्य की घटना को बताया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स. ब्यूरोक्रेसी. व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? Bureaucracy is the word in which we will describe about the government. मीन्स शासन व्यवस्था के बारे में, वैसा शासन व्यवस्था which is government by officials in a state. किसी भी राज्य में ऑफिशियल्स के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, नौकरशाही व्यवस्था. फिफ्थ नंबर, एंड ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे. वह कार्य, माना किसी ऑफिस में काम कम पैसा ज्यादा, तो ऐसा कार्य हो तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेक्योर. व्हाट वी से? सिनोक्योर. सिनेक्योर इज द वर्ड विच मीन्स एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे. इन दिस वे टुडे वी हैव स्टडीड 5 one word substitution. 5 one word substitution we have studied. What is the 5 one word substitution that we have studied? 5 one word substitution. First number insolvent, second number physiology, third number first number what we have studied? Insolvent. Second number physiology, third number astrology, fourth number bureaucracy, एंड फिफ्थ नंबर सिनेक्योर. इंसॉल्वेंट मीन्स जो दिवालिया हो चुका हो. फिजियोलॉजी मीन्स शरीर शास्त्र, शरीर के फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं. एस्ट्रोलॉजी में तारों के द्वारा जो है भविष्य बताया जा सकता है, वैसा विज्ञान.
जो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है ब्यूरोक्रेसी, किसी भी स्टेट में ऑफिसर्स के द्वारा जो सरकार चलाया जाता हो। सिनेक्योर मीन्स वैसा ऑफिस जहां काम कम पैसा ज्यादा हो, लगभग कोई काम नहीं और पैसा बहुत हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सिनेक्योर। इन दिस वे वी हैव लर्न 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, let's see the next phase, that is idioms and phrase. What we will study today in idioms and phrase? Let's see the first question, the first number. To do something about above board, sorry, to do something above board माना किसी को खुले दिल से मदद करना, माना कोई भी कार्य खुले मन से करना। खुले दिल माना खुल करके कोई कार्य करना। तो खुल करके जब कोई कार्य करते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं टू डू समथिंग अबव अबोर्ड, मीन्स टू डू समथिंग ओपनली विदाउट एनी सीक्रेसी और डिसेप्शन। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। वी शुड कोऑपरेट ऑनेस्ट पीपल अबव बोर्ड। जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें हम लोगों को खुलकर क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए, मदद करना चाहिए। फिर दूसरा, फर्स्ट नंबर क्या है? टू डू समथिंग अबव बोर्ड माना खुले मन से कोई कार्य करना, खुल करके कोई कार्य करना। जैसे जो ईमानदार लोग होते हैं उनसे हमें डर भय नहीं रहता है कि वह छल कपट करेगा। दैट्स वाई वी शुड कोऑपरेट ऑनेस्ट पर्सन और पीपल अबव बोर्ड, मीन्स ईमानदार लोगों को हम लोगों को खुले दिल से मदद करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। Let's see the another question. To settle one's account with माना किसी के साथ हिसाब किताब चुकतू करना। To pay what one owes to someone, ठीक है। As for example, बम बम has settled account with you. बम बम आपके साथ हिसाब किताब चुकतू कर लिया है। ओके, लेट्स सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन। विदिन इन एस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना, मीन्स फेलिंग और एस्केपिंग बाई अ नैरो मार्जिन। बहुत कम मार्जिन से वह क्या हो गया? एस्केप हो गया, मीन्स बाल बाल बच गया। खतरा तो बहुत भारी था लेकिन वह बाल बाल बच गया, ठीक है। चांसेस बचने का कम था लेकिन फिर भी वह बच गया। तो ऐसी इवेंट को हम लोग कहते हैं विद इन एन एस ऑफ, मीन्स फेलिंग और एस्केपिंग बाय अ नैरो मार्जिन। ओके, लेट्स सी in a sentence how we use this idiom or phrases. As for example, Tandon was within an ace of success when death struck him. जब मृत्यु उस पर प्रहार किया तो बम बम टंडन जो है बाल बाल बच गई, ठीक है। इन दिस वे वी हैव लर्नड 3 idioms and phrases. Okay, let's see another 4 number idioms phrase. What is number 4? फोर्थ नंबर, टू एड फ्यूल टू फायर, मीन्स आग में घी डालने का काम करना, माना किसी को और भड़काऊ बना देना। मीन्स टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली और फियर्सली, ऐसा कुछ कह देना कि लोग और भी ज्यादा क्या हो जाए? भड़क जाए, माना भड़काऊ भाषण या कथन कह करके लोगों को भड़का देना, तो इसको कहते हैं मीन्स आग में घी डालना, मीन्स टू एड फ्यूल टू फायर। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, द रिमार्क्स ऑफ द लीडर एडेड फ्यूल टू द फायर इंस्टीड ऑफ पैसिफाइंग द मॉब। भीड़ को शांत करने के बजाय नेता का भाषण और भीड़ को उकसा दिया। तो इस प्रकार हम लोग टू एड फ्यूल टू फायर को एक सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल करना सीखें। ओके, देखते हैं फिफ्थ नंबर, रोलिंग इन द एसल्स। व्हाट्स द मीनिंग रोलिंग इन द एसल्स? रोलिंग इन द एसल्स मीन्स मच अम्यूज्ड, मीन्स हेल्पलेस विथ लाफ्टर, मीन्स हंसी से लोटपोट हो जाना। इतना हंसने में जब व्यस्त हो जाते हैं, जब जोर से ठहाका मार के कोई बात को जब हम हंसते हैं तो उस समय सुध बुध खो जाते हैं कि क्या कैसे हंसना है, कैसे रिएक्ट करना है, कौन हमारे सामने है, कुछ ख्याल नहीं करते। तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं रोलिंग इन द एसल्स, मीन्स लोटपोट होना, हंसी में लोटपोट होना, हेल्पलेस विथ लाफ्टर, मच अम्यूज्ड। तो इस प्रकार हम लोग 5 जो है इडियम्स और फ्रेजेस को देखें और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें। अब देखते हैं 5 सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स और 5
और 10 एंटोनिम्स। माना एक ही वर्ड का 10 सिनोनिम्स चेक करेंगे, देखेंगे, एक वर्ड का 10 सिनोनिम्स और एक ही वर्ड का 10 माना 10 एंटोनिम्स। इस प्रकार 5 वर्ड है और 5 का हर एक का दो दो सिनोनिम्स और हर एक का दो दो एंटोनिम्स। इस प्रकार 15 वर्ड्स हम यहाँ सीखेंगे। देखते हैं अपने वोकेबलरी को इनहेंस करने की प्रक्रिया में हम लोग आगे क्या कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, फर्स्ट नंबर है ऑकवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑकवर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ऑकवर्ड इन हिंदी। इसका मतलब हिंदी में होता है भद्दा या कठिन, व्यग्र। और इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स हम लोग यूज करते हैं क्लमसी, और दूसरा सिनोनिम्स है रफ। तो इस प्रकार ऑकवर्ड का मीनिंग हो गया क्लमसी और दूसरा हो गया रफ। और ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो भद्दा या क्लमसी और रफ है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लेवर और एप्ट। मीन्स एंटोनिम्स हो जाएगा क्लेवर और एप्ट। What is the meaning of awkward? The meaning of awkward is clumsy and rough, whereas the antonyms of awkward is clever and apt. In this way, awkward का मतलब भद्दा या कठिन, व्यग्र। तो इसका मीनिंग हो गया क्लमसी और रफ, और वहीं पर इसका जो एंटोनिम्स है वो हो गया क्लेवर और एप्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड एल्यूर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यूर? प्रलोभन देना या आकर्षण, प्रलोभन या आकर्षण। तो इसका एल्यूर का मतलब प्रलोभन या आकर्षण। तो सिनोनिम्स ऑफ एल्यूर इज एंटाइस एंड फैसिनेट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एल्यूर? एंटाइस एंड अनदर सिनोनिम फैसिनेट। ओके, एल्यूर का एक सिनोनिम एंटाइस, दूसरा फैसिनेट। तो अगर यहाँ पर प्रलोभन देना या आकर्षण करना तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विकर्षण करना, प्रलोभन नहीं देना। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स वर्ड में रिपल्स और रिपेल। द एंटोनिम्स ऑफ एल्यूर इज रिपल्स and antonyms of allure is another antonym that is repel. This is the sign of antonym, and here we see repulse and repel are the two antonyms of allure. In this way, my another second number question, that is allure, is also completed. Okay, let's see the third number question. Okay guys, what is the meaning of abortive? The abortive means निष्फल। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबॉर्टिव? अबॉर्टिव का हिंदी में मीनिंग है निष्फल। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? निष्फल। तो इसका जो सिनोनिम्स है वेन है, और दूसरा सिनोनिम्स अनप्रोडक्टिव। माना वेन माना व्यर्थ में, व्यर्थ माना कोई भी कार्य किए सफल नहीं हुए, वो व्यर्थ चला गया। कहते हैं ना, पैसा पानी में बहा दिया, मेहनत पानी में बहा दिया। माना किसी का बात का वैल्यू नहीं है, उसका बात जो है यूं ही वैल्यूलेस है, तो व्यर्थ। माना कोई भी जो है तो उस जिसका रिजल्ट ना निकले तो उसको अबॉर्टिव कहेंगे। इसका सिनोनिम्स वेन, अनप्रोडक्टिव, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इफेक्चुअल। अनदर एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोडक्टिव। द फर्स्ट एंटोनिम दैट इज इफेक्चुअल, अनदर एंटोनिम्स दैट इज प्रोडक्टिव। देन द सिनोनिम्स ऑफ अबॉर्टिव मीन्स वेन एंड प्रोडक्टिव, whereas एंटोनिम्स ऑफ अबॉर्टिव इज दैट इज इफेक्चुअल एंड प्रोडक्टिव। मीन्स जहां पर कुछ फल निकले, जहां पर कुछ प्रभाव मिले, जहां पर कुछ रिजल्ट मिले, तो वो एंटोनिम्स हो गया। ओके, लेट्स सी द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अले? अले मीन्स पीड़ा को कम कर देना, भय को कम कर देना। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखे हैं इडियम्स और फ्रेज में कि लीडर का जो रिमार्क है वो भीड़ को और उकसा दिया। माना पैसिफाई माना शांत करना, और वहां पर वो पैसिफाई नहीं किया, वो एड फ्यूल टू फायर कर दिया। तो इस प्रकार अले का जो सिनोनिम्स है वो पैसिफाई हो गया, दूसरा सिनोनिम्स सूथ हो गया। मीन्स भीड़ जो है उसका पीड़ा कम कर देना, माना भय कम कर देना, माना पैसिफाई शांत कर देना, अले और सूथ। तो ये जो है सिनोनिम्स है, लेकिन यहीं पर अले का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रावेट, और उकसा देना, और व्यग्र कर देना, और जो है क्रोधित कर देना। माना तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोवोक कहेंगे, एक्साइट कहेंगे, एग्रावेट कहेंगे। तो ये हमारा एंटोनिम्स हो गया। द एले का पैसिफाई और सूथ सिनोनिम, और अले का जो है एग्रावेट और जो एक्साइट है ये है एंटोनिम्स।
अब देखते हैं फिफ्थ नंबर, एक्सिम। एक्सिम का मतलब क्या होता है? एक्सिम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, ठीक है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं हो, जिसको सत्य साबित करने की जरूरत नहीं हो। जैसे भगवान, उसको कोई साबित क्या करेगा, वो तो स्वयं सिद्ध है। वैसे ही जो सच्चाई है, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य है तो सूर्य है, इसको कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। तो जो चंद्रमा है, जो चीज है ऑलरेडी, जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार को हम लोग कहते हैं एक्सिम। तो यहाँ पर एक्सिम का सिनोनिम्स हो जाएगा मैक्सिम, दूसरा हो जाएगा ट्रूथ। तो तो जो स्वयं सिद्ध हो, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैथ में मान करके सिद्ध करते हैं, वैसा नहीं, मानना नहीं है, जो है ही सत्य, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी, इसको एक्सिम कहेंगे। इसका सिनोनिम्स मैक्सिम हो जाएगा और ट्रूथ हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जो है ही गलत, जिसको सिद्ध करने जो माना कोशिश करता है कि मन, तो उसको माना ठीक इसका ऑपोजिट चले जाइए, जो स्वयं सिद्ध नहीं हो, जिसको सिद्ध नहीं किया जा सके, उसको कहेंगे अब्सर्डिटी। और दूसरा ब्लंडर। देन व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एक्सिम? अब्सर्डिटी एंड ब्लंडर। अब्सर्डिटी एंड ब्लंडर are the antonyms of axim. In this way, we have learned 15 words, 15 words in antonyms, synonyms, and 5 word idioms and phrases, plus 5 word, 1 word substitution. Today we have learned 25 words. Then guys, be ready to learn or enhance our knowledge because in regular basis this session is going to be continued daily. Part 2 or second session will be uploaded very soon. Then till then, bye bye.